आज के वेबिनार में जुड़े सभी महानुभावों को नमस्कार। मैं डॉक्टर तेनाली रजनी भूषण, सहायक आचार्य नैदानिक मनोविज्ञान विभाग, सामयिक क्षेत्रीय केंद्र सिक्किम एवं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान देहरादून की तरफ से आज के वेबिनार शीर्षक सुसाइड प्रिवेंशन ड्यूरिंग पैंडेमिक में आमंत्रित करती हूँ। आमंत्रण के कर्म में मैं सर्वप्रथम मैं एवं मिस मोइरम तमारिस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हितेश खुराना जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हरियाणा और सीआरसी सिक्किम टीम और पार्टिसिपेंट्स आज का वेबिनार की प्रासंगिक ही जाता है। एक तरफ महामारी के आत्मघाती प्रभाव से लोगों की जाने जा रही है और वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच में काम छूट जाने के तनाव, बीमारी से निजात पाने से समस्या, परिवार के लोगों के जो खो जाने का डर सर्वव्यापी है। इस ऐसे समय में सुसाइड रेट डेथ वर्ल्ड वाइड 1.3% है और वो 17th लीडिंग कॉज है फॉर द डेथ। जहां पहले से लोगों में स्ट्रेस था, वहीं इस महामारी के बाद स्ट्रेस रेट सीधा प्रभाव आत्महत्या पर देखा जा रहा है। इससे कैसे बचाया जाए, इन विषयों पे विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हितेश खुराना जी का पुनः आमंत्रित करती हूँ एवं प्रोग्राम में जुड़ी विशिष्ट गण के स्वागत करने के लिए मैं प्रोग्राम रिसर्च कोऑर्डिनेटर जी आरसीआरसी सिक्किम से आग्रह करती हूँ कि वो उनका स्वागत करें। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। Thank you so much. Yeah, it is indeed a great pleasure to take this opportunity to give my warm welcome to everyone here in this webinar on behalf of CRC Sikkim. Now, first of all, I would like to welcome our respected Sir Dr. Himangsu Das, Director and IPVD Dehradun, and we need no further introduction for we all are aware of his dynamism in work ethics in the field of rehabilitation and education for persons with disabilities for over more than 25 years. It is with immense dedication that our respected Sir has been playing a significant role in various committees of Rehabilitation Council of India and Department of Persons with Disabilities. We are very fortunate to have been working under his guidance, and his continuous and endless support has made this webinar possible. We welcome you, sir. Now, I would like to extend my sincere welcome to a resource person of today's webinar on the topic suicide prevention during pandemic, Dr. Hitesh Khurana, who had done his MBBS and MD from Institute of Medical Science, BHU, Varanasi, a postdoctoral fellow in geriatric mental health from King George Medical University, Lucknow. He has also served as senior resident at the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, recipient of Best Paper Award in the International Conference of Music Therapy 2014. Professor Hitesh Khurana has had almost 25 publications, 8 books, chapters, and an expert in music therapy and biostatistics. He is currently working as a professor in psychiatry at PISIMS, Rohtak, and also serving as a master trainer for HIV/AIDS counselor under Global Fund AIDS, Tuberculosis, Malaria. Sir feels that music is one such activity that stimulates maximum brain nuclei and body organs that goes a long way in keeping body and mind healthy. He sees music therapy has the potential to be the most popular alternative medicine in the future of India. Now, the existing pandemic has been detrimental and has adverse impacts to the life of many people globally. This has taken up a notch on the rise of societal risk factors. In a large nation like India, the impact of unemployment and financial stress on the people can be seen exponentially increase. Starting from reinforcing economic supports
to creating protective environments, promoting connectedness, training the public with skills that include the capability to ensure early identification of suicidal symptoms. These lessons of suicide prevention research need to be heeded during the pandemic to reduce the suicidal rate. So we are very fortunate to have you, sir, here as our resource person to share valuable views on the topic. And I hope this webinar will surely benefit all the participants today. Thank you all. And moving forward, I would like to hand over to Dr. T. Rajani, coordinator of this program. Thank you, ma'am. Thank you for welcoming. And now I request Professor Hitesh Khurana sir to kindly start his webinar. Good morning, everyone who is present here. Okay, I am really thankful to Dr. T. Rajani and Dr. Himanshu Das and Madam Irish Mohandam for giving me this opportunity to make a presentation before this August gathering. And in fact, I don't know any of you, and you are indeed the most honorable persons for me. That it is very difficult to invite anybody with whom you do not have any contact earlier, and this puts lots of responsibility on me. That first of all, I should make my presentation so that I can protect and preserve my own prestige. I can protect and prestige of the institute I am affiliated with. It should be beneficial to all, and I should be able to protect and enhance the prestige of CRC Sikkim also, who is where I am seeing that most of the people are concerned with disability, but they are keen learner. I don't expect that a person who is expert in disability and rehabilitation, they will somehow deviate towards the mental health and suicide prevention, because that is entirely a new and entirely a different field than disability. But I appreciate the spirit of all those who are working at CRC Sikkim for their being so keen learner that they don't want to leave anything. तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने टॉपिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है कि जैसे कि आपने टॉपिक बताया था कि सुसाइड प्रिवेंशन इन कोविड-19, तो उसमें थोड़ा मुझे लगा कि जब तक हम मेंटल हेल्थ का इश्यू बीच में नहीं लाते हैं तो हम सुसाइड और कोविड के बीच में लिंक करना हमारे लिए कुछ मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बीच में मेंटल हेल्थ का टॉपिक भी बीच में इंक्लूड किया है। तो जो भी मेरी डिस्कशन है, जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इस सीक्वेंस में जो है कि वो मोर और लेस चलेगा। कि सबसे पहले तो मैं सुसाइड के बारे में आपको जनरल सी बातें बताऊंगा कि सुसाइड टर्म ये होती क्या है और ये कहाँ से आई है, इसके और क्या क्या जो है कि अलग अलग तरह के प्रारूप होते हैं। और जैसे कि डॉक्टर रजनी ने शुरू में बताया कि करीब करीब 1.6% लोग इस समय जो है ना कि सुसाइडल थॉट्स या कि सुसाइडल प्रवृत्तियों से जो कि ग्रसित हैं। तो मैं कुछ उसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी बात करना चाहूँगा। सुसाइड और हेल्थ का आपस में क्या जो है कि रिश्ता नाता है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम अक्सर सुसाइड की बात भी वहीं पे करते हैं। क्योंकि आप सब लोग डिसेबिलिटी एक्सपर्ट हैं, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन में आपका जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होल्ड है। तो मैंने 2 या 3 स्लाइड्स जो है कि डिसेबिलिटी के बारे में भी रखी हैं, और मैं ये चाहूँगा कि मुझे इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट जो कि सुसाइड डिसेबिलिटी के आस्पेक्ट पे आप लोगों से मुझे ज्ञान मिले, कि मैं यहाँ पे केवल बताने नहीं आया, मैं एक तरह से आप ये कह लीजिए कि मैं सीखने भी आया हूँ। तो डिसेबिलिटी और सुसाइड का क्या है कि क्या लिंक है, क्या नाता है, इस चीज के बारे में से खूब प्रश्न कीजिएगा और खूब इस चीज के बारे में अपने कमेंट्स दीजिएगा, ताकि मैं भी इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकूं।
और कोविड-19 में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते हमें जो है कि सुसाइड और मेंटल हेल्थ प्रवृत्तियों को लेके जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनमें ये चिंता बन गई हुई है। और कुछ चीजें जो कि शायद इस सेमिनार के जो है कि को देखते हुए इतनी जरूरी नहीं है, कुछ लीगल कंट्रोवर्सीज भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी कवर करूंगा। और सुसाइड प्रिवेंशन हमें किस तरह से करनी चाहिए ये भी एक मैं कहूँगा कि एक मुख्य बिंदु रहेगा पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का। तो इसके ऊपर भी जो है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर चर्चा कीजिए और ये सारे को जो है कि डिस्कशन के दौरान ये सारी की सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। सुसाइड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सुसाइड की हमारे पास कोई एक डेफिनेशन नहीं है, और अगर हिंदी में इसको हमने बताना हो तो इसको हम बहुत आसानी से इसी तरह से बता सकते हैं कि जब किसी के में आत्मघाती प्रवृत्ति आ जाती है कि बंदा खुद के साथ जो है कि समन्वय में नहीं रह पाता है और चाहता है कि उसकी जिंदगी ना रहे, उसको इस जिंदगी में नहीं होना चाहिए, और इसके चलते वो अपने कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि जिससे कि उसकी जान को खतरा होता है। तो ये सारे के सारी चीजें जो है कि ये सुसाइड या आत्मघाती प्रवृत्ति में आ जाती हैं। और अगर इंसान जो है कि ऐसी प्रवृत्तियों के चलते ऐसी कोशिश में कामयाब हो जाता है तो हम उसको सुसाइड कहते हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जो स्निडमैन ने दी जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, इस चीज को पूरी दुनिया में बहुत अहमियत दी जाती है। कि इसमें आपको सबसे एक अजीब बात लगेगी कि इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी लाइन में मल्टी डायमेंशनल मैलिस, यानी कि इंसान जो है कि एक चीज से नहीं कई चीजों से जो है कि इंसान परेशान है, लेकिन उसको जो है कि उस चीज का एक हल नजर आता है, और वो हल क्या है? वो हल है आत्महत्या या सुसाइड। तो स्निडमैन ने जो है कि सुसाइड को एक तरह से एक हल की तरह, इसको एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या और किसी तरह की सोशल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा। और बाद में जब लोगों ने इस चीज के ऊपर थोड़ा और जो है कि सोचा विचारा तो वाकई उनको लगा कि गिवन सिचुएशंस में कि जिन हालात में वो व्यक्ति रहता है, शायद उन हालात में सुसाइड एक तरह का हल ही होगा, जिससे कि वो अपनी समस्याओं से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं, वो उसकी सेवाओं, उसकी काबिलियत, उसकी रचनात्मकता, इन सब से वंचित हो जाते हैं। जिसके चलते सोशली अगर देखा जाए, सामाजिक तौर पे देखा जाए, तो सुसाइड या आत्महत्या, आत्मघाती प्रयास जैसी सोच आना, ये सब एक तरह की जो है कि खराब मानसिक प्रवृत्तियां ही हैं, और इनको दूर करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने जो है कि अपनी काबिलियत, अपनी रचनात्मकता का सब पूरा फायदा समाज को दे सके। जिंदगी का मकसद यही होता है कि समाज को कुछ देना और समाज से कुछ प्राप्त करना, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। बाकी जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, आप देखेंगे कि कुछ कुल मिला के ये करीब करीब इसी तरह की ही बनती हैं। दूसरी डेफिनेशन जिसमें कि लिखा हुआ कि एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स कई तरह से आ जाती है। कि ये पर्टिकुलर जो है कि बात की गई थी वर्ल्ड वार 2 के दौरान सर विक्टर फ्रैंकल ने, क्योंकि विक्टर फ्रैंकल एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब वो अपना कुछ काम वगैरह सब कर रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, तो उनको भी जो है कि नाजी सैनिकों ने पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में ले गए थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि ना केवल उनके ऊपर जो है कि अत्याचार हुए, और उन्होंने देखा कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जो लोगों के साथ व्यवहार होता है, तो उससे वो इतनी त्रास करते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सुसाइड के अलावा जो है कि और कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है कि इस तरह की त्रासदी को हम जो है कि सहन करें। तो वहां पे नाजी कैंप के आसपास क्या होता था कि एक
लोहे की तार लगा दी जाती थी कि जिसमें कि हाई वोल्ट करंट हमेशा दौड़ता रहता था कि अगर कोई भी भागने की कोशिश करता था तो वो वहां पे जाके अटक के मर जाता था। तो काफी सारे लोगों ने जब उनको समझ में आया कि इस जिंदगी का फायदा क्या है, तो उन्होंने जो है कि तार की तरफ भाग के उसमें अटकने की कोशिश करते थे और मर जाते थे। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि नहीं, मुझे खुद भी बचना है, मैं तार की तरफ नहीं भागूंगा और मैं किसी को भागने भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये देखा कि जब इंसान को अपनी जिंदगी का, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान परेशान होता है, किसी त्रासदी में है, तो उसका भी एक अच्छा मतलब है। और जब वो एक अच्छा मतलब नहीं समझ पाता है इसमें, तो वो जो है कि आत्महत्या या सुसाइड की तरह जो है कि प्रेरित हो जाता है। और अगर हम देखें तो आजकल का जो सीन चल रहा है कि आजकल कोविड-19 जिसमें कि लॉकडाउन हो गया है, कि लोग जो है कि कोविड से जो है कि ग्रसित हो रहे हैं और जो कि अपने फैमिली मेंबर्स से मिल नहीं पा रहे हैं, उन सब में जो है कि कहीं ना कहीं छू जाती है कि हाँ भाई, कि क्या ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है, जो कि इस तरह से उनके जो है मन में सुसाइड के विचार लेके आ रहे हैं। तो अगर हम इससे जो है कि स्पेक्ट्रम की बात करें कि पूरे इसमें किस तरह के अलग अलग तरह का व्यवहार देख सकते हैं सुसाइड के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर इंसान ने कोई ऐसी आत्मघाती कोशिश की और उसमें सफल हो गया, किसी को पता नहीं चला, तो हम उसको सफल सुसाइड या जो है कि कंप्लीटेड सुसाइड कह लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोशिश की और बहुत जबरदस्त कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है कि वो इंसान जो है कि समाज से बच नहीं पाया, किसी ना किसी को उसके बारे में पता चल गया, लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, मदद मिल गई उसको, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बच पाया। तो ऐसी हालत में उसको सक्सेसफुल सुसाइड ना कह के उसको हम कंज्यूमेटेड सुसाइड कह देते हैं। अटेम्प्टेड सुसाइड इससे थोड़ी सी एक और जो है कि कम सीरियस सिचुएशन है कि जिसमें इंसान ने पूरी तरह से सोच लिया हुआ कि हाँ मुझे मरना है, कारण उसके मन में बहुत सारे हैं। ऐसा है कि जिसके मन में ये कह लीजिए कि अगर सुसाइड करना चाहता है तो उसके मन में ऐसे कारणों की, एकदम जेन्युइन कारणों की उसको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको इससे बचने के भी जो है कि बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिससे कि वो पहले सोच के उनसे बच जाता है। तो अटेम्प्टेड सुसाइड में इंसान को पता नहीं कि क्या कारण उसके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, क्या कारण उसके लिए कि उसको नाकामयाब करेगा, लेकिन वो कोशिश करता है और जो कि मन में पूरा ठान लिया हुआ है, इंटेंशन पूरी है। लेकिन तो डेलिब्रेट सेल्फ हार्म या सुसाइडल गेस्चर वो होता है कि जिसमें इंसान यही बताना चाहता है लोगों को कि मुझे कोई किसी तरह की परेशानी है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरी बात सुने। उसको बात अपनी कहने या सुनने की उसकी इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है या उसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो किन शब्दों में अपनी बात का लोगों के सामने बयान करे। तो इसलिए वो जो है कि एक बॉडी लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे जो कि बॉडी लैंग्वेज जो एक तरह के सुसाइडल गेस्चर्स या आत्मघाती की प्रयास हैं, उनकी वो मदद लेता है। तो इससे वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देता है कि जब लोग उसकी बात सुनने के लिए आते हैं तो वो उस तरह से बता सकता है। यहाँ पे इंसान को मन में सुसाइड करने की या मरने की कोई इच्छा नहीं है। एक्सटेंडेड सुसाइड, जैसे कि देखा गया कि कोई बंदा बहुत परेशान है तो वो केवल ना अपने आप को मारना चाहेगा, बल्कि वो ये भी चाहेगा कि जो उसके ऊपर निर्भर है, परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे या पति या माता पिता कोई भी है, वो भी उसके साथ मर जाए ताकि उसके जाने के बाद किसी को कोई किसी तरह की मुश्किल ना हो। तो इसको सुसाइड पैक्ट, जब दो लोगों ने आपस में ऐसा कुछ समझौता कर लिया कि हाँ भी हम दोनों चलो इकट्ठे ही मरते हैं। और इसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो कि बहुत लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ये पृथ्वीराज चौहान और कवि छंद की है कि जब पृथ्वीराज ने जो है कि छल से जो है कि मोहम्मद गौरी को मार दिया, तो अब उसको पता था कि सेना नहीं छोड़ेगी। तो इन दोनों का आपस में पहले ही समझौता हुआ था कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मर जाएगा तो उसके बाद
छंद पृथ्वीराज चौहान को मार देगा और पृथ्वीराज चौहान कवि छंद को मार देगा। तो दोनों ने एक दूसरे में को जो है कि एक प्रहार करके मार लिया। सुसाइड क्लस्टर्स, जो सुसाइड कंटेजियन, ये आजकल एक जो है कि मैं कहूँगा कि प्रेस और मीडिया के चलते एक बहुत विकराल रूप ले रही है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई न्यूज है, कोई समाचार है किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने का, खास तौर पे जब वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पॉपुलर है लोगों में, जैसे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो गया या कोई किसी का फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हो गया, कि जब किसी का ऐसा कुछ प्रयास की कोशिश आती है तो जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो भी जो है कि आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से करके जो है कि एक सुसाइड के चलते जो है कि काफी लोग जो है कि सुसाइड करने की वो कोशिश करते हैं। तो रैशनल सुसाइड, जैसे कि पहले कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कि सुसाइड करने का कोई एक उचित कारण ना हो, और लेकिन उसके पास और तरीके भी ऐसे होते हैं जिसमें कि वो बच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि जिसमें सुसाइड ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, कि अगर वो साइंटिफिक दृष्टि से भी सोचा जाए। ऐसी कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जैसे कि कोई इंसान जो है कि टर्मिनली इल है, उसके बचने की कोई उम्मीद बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो इंसान जो है कि बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, कि जितना समय भी वो रहेगा वो दर्द ही सहता रहेगा। या जो है कि इंसान एकदम वेजिटेटिव स्टेट में है, व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, कि वेंटिलेटर से उतारा जाएगा तो बंदा जो है कि व्यक्ति जो है कि वो बच नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो है कि सुसाइड या जो है कि फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड की बात करते हैं तो वो हमें लगेगा कि अनुचित नहीं है। हम लोग कुछ ऐसे व्यवहार में भी आ जाते हैं जिसमें कि हमें इमीडिएटली कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ऐसा व्यवहार हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे लिए किसी भी समय जान का खतरा हो सकता है। ये नशाखोरी और खास तौर पे स्मोकिंग, ये इस चीजों में आती है कि बड़े बड़े जो है कि लेबल बना के लिख दिया जाता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर कि हाँ इस चीज का चलते आपको जो है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी जो है कि इसको पीना जो है कि हम नहीं छोड़ते हैं। तो इसके चलते भी और आखिर में हमें कैंसर तक की बीमारियों का खतरा रहता है। तो लेकिन हम इस व्यवहार को नहीं छोड़ पाते हैं। तो और भी इसी तरह के व्यवहार कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें जो है कि भीड़ भाड़ वाली सड़क भी मिलेगी तो भी हमें उसमें जो है कि 80-90 की स्पीड के ऊपर चलाना है, उससे कम स्पीड पे चलाने का हमें कोई मजा नहीं आता। तो इस तरह की व्यवहार जो कि किसी भी समय जानलेवा बन सकते हैं, इसको क्रोनिक सुसाइड का नाम अक्सर दिया गया। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जिस किसी ने भी सुसाइड करना होता है या जो आत्महत्या करनी होती है कि वो किसी से जो है कि अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो स्नेडमैन ने जो है कि करीब करीब क्या किया कि अपने एक और दोस्त के साथ, फेयर ब्राउन के साथ जो है कि एक रिसर्च की, उन्होंने एक अनुसंधान किया कि जिसमें उनके पास 972 सुसाइड नोट थे। तो उन्होंने देखा कि उसमें 10 बहुत कॉमन चीजें हैं कि हर सुसाइड नोट ये बताता है कि बंदा किसी न किसी विकराल, किसी न किसी जो है कि दर्द भरी मानसिक स्थिति से गुजर रहा, कुछ करता है उसको नहीं मिल पाता है, इस चीज के चलते वो एक असफलता या फ्रस्ट्रेशन की जो है कि की तरह भी महसूस करता है। और अब वो उसका किसी तरह से सोल्यूशन चाहता है कि जो उसको नहीं मिल पा रहा है, और उसको यही एक चीज सोल्यूशन नजर में आता है। और वो सोल्यूशन क्या है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए और कुछ नहीं। उसको जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा। होपलेसनेस की जो स्थिति होती है, ये ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 80 से 90% स्थितियों में होपलेसनेस से वो जो है कि जूझ रहे होते हैं। और फिर भी वो एक तरह से जो है ना कि ये कह लीजिए असमंजस में होते हैं कि ये चीज की जाए या ना की जाए, लेकिन ज्यादातर उनका झुकाव इसी तरह की तरफ होता है कि हाँ ये कर लिया जाए। हल इस सिचुएशन के बहुत होते हैं, लेकिन उस समय उनका एक टनल विजन होता है कि उनकी एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन होती है कि वो आसपास और जो मौजूद
हल होते हैं वो उनको नहीं सोच पाते हैं, उनको एक आत्महत्या ही जो है कि समझ में आती है। और सबसे पहले वो जो है कि इस चीज के बारे में फिर भी लोगों से पूछना चाहते हैं, लोगों से इस चीज का हल चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वो जो है ना कि किसी ना किसी तरह से उन्होंने लोगों से बात की जाती होती है कि भाई ये समस्याएं हैं, इनका मुझे हल नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि मर जाना ही शायद सबसे अच्छा है। जिंदगी से निकल जाना, जो कि हालात से निकल जाना, एग्रेशन, उनसे भाग जाना, यही जो है कि उनकी पूरी की पूरी तरह से कोशिश होती है। और जिंदगी में जब देखा जाता है तो यही देखा जाता है कि एक के बाद एक उनके जिंदगी में ऐसी जो है कि हालात आते गए जिसमें कि वो नहीं अपने आप को संभाल पाए और वो इस प्रवृत्ति की तरफ जो है कि बढ़ पाए। अगर हम किसी सुसाइड प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हमें ये 10 चीजों के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो कि अपनी कुछ मानसिक व्यथा या कि मानसिक दर्द बता रहा है तो हमें जरूर उसकी तरफ ध्यान देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो कि हताश हो रहा है, निराशा की बातें कर रहा है, तो उसमें भी ऐसी प्रवृत्ति के बारे में हमें बात जरूर करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि अब मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकल पा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इस चीज को चाहे कोई व्यक्ति हंस के कह रहा हो, चाहे कुछ किसी भी तरह से कह रहा हो, कि ये एक ऐसी चीज है कि इसके चलते हमें फटाफट जो है कि एक तरह से हरकत में आ जाना चाहिए। जो हेल्पलाइन है, जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं या अपनी तरफ से हम कुछ कर सकते हैं, उसकी हमें मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए, कि बजाय कि हम सोचे कि हाँ भी बंदा तो ये मजाक में कर रहा है, ये ऐसा क्या करेगा। ऐसी चीज को हम कभी भी मजाक में नहीं ले सकते। सुसाइड आया कहाँ से? ये जो है कि बहुत एक पुरानी चीज है। लगभग इस चीज के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि और काफी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस चीज के बारे में बात करनी जरूरी है। कि ये भी देखा गया है कि असम में एक छोटा सा गांव है जतिन, जहाँ पे कि हर साल देखा गया कि पक्षी आते हैं लेमिंग वैरायटी के, और वो अपने जो है कि नदी में या जो है कि वहां से दूर जाके कहीं जो है कि खाड़ी बंगाल में जाके सुसाइड कर जो कि डूबने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों को कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि जब पशु पक्षियों में इस तरह की भावनाएं हो सकती हैं तो हम इंसान में क्यों नहीं ऐसे हो सकते। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई बहुत धनी व्यक्ति हो या बहुत गरीब व्यक्ति हो या जो है कि समाज का कोई भी धर्म हो, ये अक्सर देखा गया है कि ये जो है कि एक कोई भी सुसाइड, कोई भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करता है और इसको कोई भी सैंक्टिटी या इसको कोई भी अनुमति नहीं देता है, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो। चाहे हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म कुछ हद तक जो है कि इसकी जो है कि हमें इजाजत देता है। जैसे कि खास तौर पे आपने ये देखा होगा कि हमारे अगर पुराने पुराणों में देखते हैं तो जौहर और सती की जो है कि प्रक्रिया ये बहुत कॉमन होती थी। और जौहर की जो है कि प्रक्रिया ये तो ऐसी होती थी कि स्त्रियां जो है कि इसको बहुत खुशी खुशी करना चाहती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारी जान हमारी इज्जत से बढ़ के नहीं है, तो हमारे ऊपर किसी और के हाथ पड़े या किसी और के हम हाथ आ जाएं, इससे अच्छा तो यही है कि हम ईश्वर के हाथ में आए। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए, ये हमने बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, रामायण के समय से सुनते आ रहे हैं। और जो है कि इस तरह से जो है कि अनशन की फास्ट अनटू डेथ, ये भी हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित जो है कि प्रथा है। कोई भी अगर प्रोटेस्ट करना होता है तो ये है कि, लेकिन हम आम तौर पे ये मान के चलेंगे कि कोई भी रिलीजन है कि वो हमें जो है कि यही चाहता है कि हम सुसाइड ना करें। चाहे ये मुस्लिम रिलीजन तो बहुत ही ज्यादा इस चीज की फेवर में है कि सुसाइड जो है कि ये एक तरह का घोर पाप है, लेकिन बाकी रिलीजन भी कुछ हद तक इसी तरह से ही कहते हैं। सुसाइड टाइपोलॉजी ये भी एक थ्योरी की चीज ही हो जाती है कि मैं इस चीज के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। कि डरखीम ने जो कहा वो यही कहा जो है कि उस चीज, क्योंकि आप सब लोग डिसेबिलिटी और जो है कि सोशल वेलफेयर स्पेशलिस्ट है, तो डरखीम की बात मैं ज्यादा करना चाहूंगा कि उनको लगता है कि
उनको लगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि समाज से अलग थलग हो जाता है, उसके जो है कि बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, परिवार में जो है कि उसको बहुत बाधाएं आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि परिवार से मिलना जुलना नहीं चाहता, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, अपने ईगो में आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि सुसाइड या आत्महत्या के बारे में ज्यादा जो है कि सोचता है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये जो है कि एक तरह की सुसाइड वैसे तो एक बुरी बात होती है, लेकिन जब इसके साथ हम अल्ट्रुइस्टिक वर्ड यूज कर देते हैं, यानी कि समाज सेवा का जो है कि एक बात इसमें लगा देते हैं कि इसके चलते किसी का फायदा होगा, तो वो एक रिस्पेक्टेबल बात भी हो जाती है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हम आमतौर पे किन में देखते हैं, जो हमारे सैनिक हैं। उनको पता है कि जब जो है कि जंग छिड़ेगी और वो कोई एक्शन लेंगे तो उनका मरना करीब करीब निश्चित है। ये पक्का नहीं कह सकते कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो उससे डरते भी नहीं है। तो वो जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनके परिवार के, इसमें उनकी देश की सुरक्षा की बात है, जो कि उनके मरने से कहीं ज्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट। एनोमिक सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति जो है कि इस तरह से कोई जो है कि किसी तरह की मानसिक व्यथा से ग्रसित है, तो उनमें अलग थलग हो जाना, उनको इस तरह के विचार आना, ये भी जो है कि बहुत ही कॉमन हो जाता है। फेटलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे कि बंदा जो है कि अचानक किसी तरह से बहुत हर्ट महसूस करता है, उसको लगता है कि हाँ भाई, जो उसने इज्जत कमाई थी वो गई। ये ऐसी चीजें आजकल कहाँ पे मिल रही हैं? ऐसी चीजें हमें आजकल बच्चों में मिल रही हैं। बहुत एम्बिशियस हैं बच्चे, उनको जो है कि 8वीं 10वीं क्लास में ही लगने लगता है कि हाँ, हमने तो IIT करना है, IAS करना है। तो अगर उनको नहीं होता, तो उनके नंबर थोड़े से भी जो है कि कम रहते हैं, तो इससे भी उनके मन में जो है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं नहीं भूल पाता एक ऐसी स्थिति को, जो कि करीब करीब जो है कि 2010 के आसपास एक आई थी कि IIT बॉम्बे की एक लड़की जो कि यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन पे आई थी। 2nd पोजीशन पे क्यों आई थी? क्योंकि फिजिक्स में उसके 2 नंबर कम थे। उसको बहुत खराब लगा इस चीज के बारे में, तो उसको लगा कि उसका जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा है। वो बचपन से लेके अब तक टॉप करती आ रही, तो अब 2nd पोजीशन क्यों? इससे अच्छा यही है कि जिंदगी खत्म कर ली जाए, और उन्होंने ऐसा कर लिया। तो इस चीज को हम फेटलिस्टिक सुसाइड कह देते हैं, कि जहाँ पे इंसान को अपनी इज्जत का खतरा महसूस होता है। तो क्या हमने पहले 10 बातें की, और उसके बाद जो है कि हमने और भी कुछ बातें की, डरखीम की बातें की। उन्होंने किस तरह से जो है कि सुसाइड को जो है कि सामाजिक स्थिति को देखते हुए क्लासिफाई किया। तो क्या इन चीजों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम सुसाइड प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसका हम जो है कि पता लगा सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका उत्तर यही है कि हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति सुसाइड प्रोन है, किसमें इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन कब सुसाइड हो रहा है और कौन सुसाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है, ये हमें नहीं पता चल सकता। तो इसलिए हमें जो है कि हमेशा चौकन्ना रहना होगा। हमें अपनी मेंटल हेल्थ और जो है कि समाज की मेंटल हेल्थ की तरफ हमेशा जागरूक रहना होगा, ताकि कोई व्यक्ति जो है कि सुसाइड के बारे में सोच ही ना पाए। यहाँ की ये भी एक तरह का हल होता है कि बेशक उन्होंने एक साइकोलॉजिकली इसको एक हल सोचा गया, लेकिन सुसाइड जो है कि किसी भी तरह का जो है कि किसी भी समस्या का हल के बारे में कोई ना सोचे, और इसको एक तरह की जो है कि मुश्किल भरी बात ही सोचे अपने लिए या परिवार के लिए। तब हम कह सकते हैं कि हम सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना, इसकी कोई किसी तरह की जो है कि भविष्यवाणी करना, वो किसी के भी बस की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे जो कि टूल हैं, बहुत सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। अगर हम इसकी जो है कि कुछ आंकड़े की बात करें कि हमारे दुनिया में सुसाइड के क्या हाल है, तो आपको ये जान के भी जो है कि ताज्जुब होगा कि यंग अवस्था में, जैसे कि 15 से 29 साल की अवस्था, जिसमें कि बंदा अपना कैरियर बना रहा होता है, सामाजिक कैरियर भी और अपना जो है कि आर्थिक कैरियर भी बना रहा होता है, कि उस समय जो है कि दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है कि वो सुसाइड है। पहला कारण कौन सा आता है? पहला कारण इस एज में एक्सीडेंट ही आता है।
बच्चों में अक्सर, जो कि बहुत छोटे बच्चों में नहीं देखा गया है कि सुसाइड होता है या कब होता है, लेकिन उनमें भी जो है कि एक अननेचुरल डेथ का तीसरा मुख्य कारण देखा गया। तो समस्या बहुत विकराल है, हमें इस चीज को किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, चाहे ये समय कोविड का है, चाहे जो है कि हम एक आम समय में जो है कि जी रहे हैं। और लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें कि मैं कहूँगा कि भारत की जनसंख्या एक तरह से भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा आती है, ये हमारे लिए एक विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि 78% सुसाइड इन्हीं कंट्रीज में होते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं कि हम जो है कि हमारे देश का रंग जो है कि बहुत डार्क कलर में शो किया गया है, कि जहाँ पे कि 15 पर जो है कि 10,000 15 पर लाख से ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, कि उन देशों में आ रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उन देशों में है जहाँ पे कि आबादी बहुत कम है, साइबेरिया और कुछ जो है कि यूरोप की कंट्री जहाँ पे कि आबादी बहुत कम है। तो अगर हम कुल मिला के देखेंगे, अगर हम इंडिविजुअल परसेंटेज की बात ना करके हम फिगर्स की बात करेंगे, कि संख्या की बात करेंगे, तो संख्या सुसाइड की मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमें अपने देश में ही मिलेगी। तो हमारे लिए ये एक बहुत चिंता का विषय हो जाता है। मेल टू फीमेल, हालांकि हम सब लोग कहते हैं, और होना भी यही चाहिए, कि स्त्री पुरुष लड़का लड़की इनमें कोई भी जो है कि फर्क नहीं होना चाहिए, और ना ही हमें कोई फर्क ऐसा कोई मानना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां जो है कि अक्सर देखी गई हैं कि ये मेल्स में ज्यादा है, पूरे के पूरे अगर दुनिया में देखें तो ज्यादा सुसाइड जो है कि वो मेल्स के द्वारा होते हैं। लेडीज की सुसाइड की कोशिश ज्यादा करती हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाती हैं। यानी कि जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, कि वो जब कोशिश करेंगे तो इतनी डिटर्मिनेशन के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ करेंगे कि उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। और जिन देशों में आपको कम मिलेगा कि फीमेल्स में सुसाइड बहुत कम है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये चीन और एक बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि जहाँ पे कि हमें कि लेडीज में सुसाइड रेट्स हमें मेल से कम मिलती है। काफी सारे कारण रहते हैं कि जो सुसाइड को जो है कि तरफ बंदे को जो है कि प्रेरित करते हैं, कोई एक कारण नहीं हो सकता है। तो कुछ कारण जिनको हम बदल नहीं सकते, हम किसी की उम्र नहीं बदल सकते, किसी का लिंग नहीं बदल सकते, किसी का सामाजिक स्तर और उसका जो है कि कौन से जो कि समाज से वो संपर्क रखता है वो नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीजों को जब हम बदल सकते हैं वो ये है कि लो इनकम रिहेबिलिटेशनिस्ट और डिसेबिलिटी एक्सपर्ट इस चीज के ऊपर जरूर काम कर सकते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम कम है तो क्या वो ऐसा करे कि वो बढ़ सकती है। इनइक्वालिटी इनकम, हमारा देश कहते हैं कि हमारा देश जो है कि एक धनी देश है, लेकिन लोग इसके गरीब हैं। गरीब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम की बहुत इनइक्वालिटी है, कि अगर हम किसी ऑफिस में भी देख लेंगे तो हमें ऑफिस में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि किसी की जो है कि इनकम जो है कि 2 लाख महीना होगी, तो किसी की जो है कि 20,000 महीना होगी। बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो हमें जो है कि उस चीज को भी ठीक करने की तरफ हमें, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुख्य कारण है। जब बंदे को ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूंगा, आगे चल के अपने परिवार का जो है कि पालन पोषण कैसे करूंगा, तो ये एक मुख्य कारण देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइड रेट जो है कि 20% से लेके 50% तक देखा गया है। और जब सोशल चेंज होता है किसी तरह से, कि लोग जो है कि अपना जो है कि घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे आते हैं व्यवसाय के लिए, लेकिन वहां पे उनको जो है कि डिस्क्रिमिनेशन मिलती है, या वो व्यवसाय नहीं मिल पाता, या वो उस कल्चर में नहीं एडजस्ट हो पाते, तो भी जो है इस तरह से सुसाइड के बारे में जो कि वो सोचना शुरू कर सके। आप देख सकते हैं कि इनमें अगर बात करें तो लो इनकम की बात अगर हम कर सकते हैं, लो इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसे कारण हैं जो कि हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन और पेंडेमिक में एक तरह के मुख्य कारण जो है कि एक सामाजिक जो है कि कष्ट के एक मुख्य कारण बन के हमारे सामने आए हैं। और माइग्रेशन, इन दोनों में माइग्रेशन कुछ जगह पे हो पाई और कुछ जगह पे नहीं हो पाई, लेकिन इसके चलते भी लोगों ने जान गंवाई है। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयड और जो सिचुएशन, जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि पहले ही बहुत तरह की जो है कि ये क्या
की कमियां होती हैं, जैसे कि स्लम एरिया में है, ना तो उनके पास रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है, और ना ही उनके पास साफ सफाई का कोई साधन है कि अगर कहीं से गंदा पानी बह रहा है तो उन्हीं के पास उनका घर है और हर तरह की बीमारी भी उनके आसपास मौजूद है। LGBT कम्युनिटी, जिनको कि हम हमेशा यही मानते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले एक बहुत अजीब सा जो है कि ये एक हादसा हुआ कि मेरे पास एक मरीज आया LGBT कम्युनिटी का ही, तो मैंने उनसे पूछा कि काम आप क्या करते हैं, तो उसका जवाब था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो है कि आपके घर पे शादी होगी तो हम बधाई के लिए आ सकते हैं, बेटा बेटी होगा तो हम उस पे बधाई के लिए आ सकते हैं, इसके अलावा हमें और कौन काम देगा। तो ये एक तरह से काफी चिंताजनक विषय था जो भी उसने बात बोली। हालांकि उनमें जो है कि ऐसे करे कोई किसी तरह की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर हम अपने स्ट्रीम में ले इस तरह से, यानी कि कुछ लोग जिनको कि हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया हुआ है, मार्जिनलाइज कर दिया हुआ है, डिसेबिलिटी जिन लोगों में है वो भी कुछ इन्हीं में ही आते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता है तो हम इसको जो है कि ऐसा काम करने के लिए नहीं कहें, हम उसके ऊपर दया दृष्टि से ऐसा करते हैं, या जो है कि हमारे अपनी एक ईगो की भावना होती है जिस वजह से होता है सब। दोनों चीजें उसके लिए जो है, दया दृष्टि और ईगो की भावना, दोनों चीजें ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बुरी होती हैं। तो इस तरह से जो है कि अगर हम सामाजिक अवहेलना करते हैं तो व्यक्ति जो है फिर भी जाके इस तरह से सुसाइड की तरफ, या उसके मन में ऐसी बातें और भी कई चीजें आ जाती हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है, सब जो कि आखिर में सबसे आना ही होता है अगर उसको कोई हल नहीं मिलता, तो सुसाइड है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सारी रिसर्च हुई है तो उससे यही पता चला है कि ऐसा नहीं कि किसी की व्यक्ति के मन में जो है कि कोई किसी तरह की कमी है या किसी की व्यक्ति के जीवन में कोई किसी तरह की परेशानी है तो वो व्यक्ति जो है कि सुसाइड कर रहा है। पहले उसके मन में पहले उसके साथ सामाजिक परेशानियां आएंगी, फिर उसके साथ मन में परेशानियां आएंगी। मन में जब परेशानियां आती हैं तो वो कई बार मानसिक रोग का रूप ले लेती हैं, और आमतौर पे ये देखा गया कि जब मानसिक रोग है तो मानसिक रोग एक तरह से अपने आप में ही जो है कि व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ प्रेरित करने के लिए काफी है। ये बात कोई नहीं है, ये एक बहुत जो है कि बड़े मनोवैज्ञानिक सिम ने आज से करीब 500 साल पहले ये बात जो है कि कह दी थी, और ये बात उस समय भी उतनी ही सत्य है जितने की आज है। और सबसे बड़ा सत्य आत्महत्या को लेके आजकल यही है कि जहां पे मानसिक अवस्था बिगड़ी या मानसिक रोग हुए वहां पे सुसाइड, आत्महत्या की प्रवृत्ति आएगी ही आएगी। और अगर हम अलग अलग से डिफरेंट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये देखा गया है कि डिप्रेशन इनमें एक ऐसा कारण है। डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज यानी कि नशाखोरी, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिनके चलते कि किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं फिर तो ये कह लीजिए कि व्यक्ति को जाके अकेले रहने का मौका देना ही नहीं चाहिए, उसको फटाफट जो है कि चाहे वो एकदम ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन अगर कोई नशा कर रहा है और साथ में उसमें उदासी के लक्षण भी हैं तो उसका ये एक ठीक जगह जो है कि मनोरोग अस्पताल ही है, इसके अलावा और कोई जगह उसके लिए उचित नहीं है। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें उनमें भी इसी तरह से आ जाता है। तो ये जो है कि मैंने ICD-10 से क्लासिफिकेशन ली हुई है। F1X का मतलब होता है कि नशाखोरी से रिलेटेड जो प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे वो शराब या जो है कि अफीम वगैरह या गांजा, कोकीन सब। और F2X यानी कि F20 स्किज़ोफ्रेनिया या जो है कि उन्माद जो कि उनकी बात आ जाती है। F30 की बात आज इसमें कि हम उदासी की बात करते हैं या और किसी चीज की बात करते हैं। इन सब में उदासी जो है कि ये देख लीजिए कि 20 गुना एक आम व्यक्ति से 20 गुना जो है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। तो
हमें ये खास तौर पे ये सोचते हैं जो है कि इसकी तरफ गौर करना चाहिए। और कुछ व्यक्ति जिनमें कि एक तरह से ये कह लीजिए कि व्यक्तित्व की विकृतियां होती हैं, खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जिनमें कि ये है कि हमें समाज के लिए कुछ भी कर देना है, अल्ट्रुइस्टिक भावना, या जो है कि जो कुछ भी होना चाहिए मेरे लिए ही होना चाहिए, अगर मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, कि एक तरह से अपने आप को अहमियत देने वाली भावना। तो और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, जिसको कि हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो है कि आत्महत्या की तरफ अक्सर बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। ये डाटा मैंने जो है कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो 2017 में हुआ था उससे लिया है। तो ये शो करता है कि किसी भी तरह का जो है कि मेंटल डिसऑर्डर जो है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, कि किसी भी समय हम अगर सर्वे करते हैं छोटे से सैंपल में भी, तो हमें 10% लोग मिल सकते हैं जो कि किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से ग्रसित होंगे। और अगर जो है कि उनमें हम देखें तो सुसाइड की प्रवृत्ति कितनी रहती है, सुसाइड की प्रवृत्ति जो है कि आम तौर पे उनमें जो है कि 90% रहे, और कई लोगों में जो है कि ये 90% से भी ज्यादा हो सकती। तो और इसके विपरीत हालात क्या है कि अगर हम जो है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की इलाज, तो 100 में से केवल जो है कि ज्यादा से ज्यादा 30 मरीज ही ऐसे हमें मिलेंगे अपने देश में जो कि जिन्होंने कभी ना कभी जो है कि मानसिक रोग का इलाज करवाया है। नहीं तो 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि मानसिक रोग का इलाज, उनको पता ही नहीं है कि मानसिक रोग क्या होता है और मानसिक रोग का इलाज कहाँ पे होता है, इसके बारे में तो जो है कि शायद बताया ही नहीं। तो अगर ऐसी हालत है तो हमारे देश जो है कि सुसाइड का रेट जो है कि ज्यादा होना उचित है या नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कि मानसिक रोग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये देखा गया है कि मानसिक रोग से तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब हमारा जो रिवाइज्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसमें इन्होंने जो है कि पहले 7 तरह की डिसेबिलिटी थी, अब इसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी आ गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत जो है कि मैं कहूँगा कि अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, कि हर तरह की डिसेबिलिटी को जो है कि आइडेंटिफाई करके इसमें लिख दिया है, और एक ये प्रावधान भी छोड़ दिया है कि अगर जो है कि आपको किसी और तरह की डिसेबिलिटी की मिलती है तो आप उसको भी कोड कर सकते हैं। और आमतौर पे यही देखा गया कि जहाँ पे भी डिसेबिलिटी बढ़ी वहां पे जो है सुसाइड के रेट्स भी बढ़े हैं। तो ये एक सर्वे जो है कि ये इंडिया में अनफॉर्चुनेट, ये आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये एक चिंता का विषय भी है और एक तरह का ये अपॉर्चुनिटी भी है कि मुझे भारत में से ऐसा कोई डाटा इतना मिल नहीं पाया कि जिसमें कि डिसेबिलिटी का सुसाइडल प्रवृत्ति के साथ क्या रिश्ता नाता है। तो कोई व्यक्ति जो है कि आप भी एक ऐसा जो है कि अनुसंधान कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि उसको आप इस चीज के साथ जोड़िए कि जब डिसेबिलिटी का आपने उसका इलाज किया, जब आपने उसको रिहेबिलिटेट किया, डिसेबिलिटी ना हो कि उसको एक डिफरेंटली एबल्ड देख के उसका जो है कि एक जो है कि रहने सहने का उसके रिहेबिलिटेशन में उसका साथ दिया, तो उससे जो है सुसाइड रेट्स पे क्या फर्क पड़े। एक हमारे देश में एक मैं कहूँगा कि बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान का विषय है। तो इस रिसर्च में ये देखा गया कि जितने भी लोग हैं, देखा गया कि इनमें जो है कि सुसाइड की जो कि धारणाएं वो ज्यादा रहती हैं। Those with any form of disability had 4 times more likely to attempt suicide than the normal population। कि अगर एक व्यक्ति जो कि जिसको कि यहाँ पे जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन कर रहे हैं तो इसमें हम उन लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जिनमें कि मनोरोग है, क्योंकि वो भी एक सामान्य जो है कि पॉपुलेशन का हिस्सा है। और जब मनोरोग के साथ डिसेबिलिटी जुड़ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहां पे आप
लोग ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो कोविड के दौरान क्या हुआ, इसका भी मुझे एक जो है कि काफी सारे सर्वे हुए हैं, तो मुझे भी इसका एक जो है कि यूएस से सर्वे ही मिला है जो कि ऑनलाइन किया गया है, कि उन्होंने काफी सारे टूल्स लिए जिसमें कि उन्होंने PHQ लिया, GAD लिया। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग जो है कि इन चीज़ों से जो है कि जानकारी रखते हैं। तो ये क्या टूल है इसके बारे में बताने की मैं इतनी कोई खास जरूरत नहीं समझता। अगर पूछा जाएगा तो डिस्कशन में हम जरूर लेंगे, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है कि 1 घंटा हो चुका हुआ है करीब करीब। तो इसमें क्या देखा गया ड्यूरिंग कोविड, जो है कि ये पिछले साल का डाटा है, सारे का सारा 2020 का, इसमें 2021 का नहीं देखा गया है, कि फरवरी से लेके अगस्त तक यूएस में जो है कि 3,88,961 लोगों को स्क्रीन किया गया, और उनमें जो है कि डिप्रेशन के या एंजाइटी की जो है कि भावनाएं देखी गई। तो ये जब नंबर देखा गया तो ये एक आम कोविड टाइम से पहले से कई गुना ज्यादा था। और इसी तरह से जब साइकोसिस की बात की गई तो 60,000 से ज्यादा लोगों को में साइकोसिस की जो है कि बात देखी गई। तो ये फिगर भी जो है कि ये पिछले कई सालों के आंकड़े से बहुत ज्यादा उनको देखी, जो हमें 1 साल में मिलती है वो उनको ये 6 महीने में मिल रही है, फरवरी से लेकर अगस्त तक, जो कि एक बहुत ही जो है कि बड़ी जो है कि संख्या, बहुत बड़ी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की हो जाती है। और मार्च से लेके डिप्रेशन, जो कि एक तरह से ये कह लीजिए कि सुसाइड की तरफ का, एक तरह से डिप्रेशन को आप गेटवे टू सुसाइड भी कह सकते हैं, कि इसमें भी हमें जो है कि कम लोग नहीं मिले। 1,31,000 एक्सेस जो है कि उनमें हमें जो है कि सुसाइड की जो है कि प्रोपोर्शन मिलती है। और अगर हम आम लोगों की बात करते हैं जहाँ पे 1% या 1.5% सुसाइड की बात हमें मिलती है, तो डिप्रेशन में तो वो 4 गुना है, तो डिप्रेशन 20 गुना है वो, तो डिप्रेशन में तो कितने लोग सुसाइड कर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे लिए ये जो कि कोविड जो है कि एक बहुत ही विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने आया है, जिसके सामने हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी जितनी भी जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं, सब की सब इसके सामने छोटी पड़ गई हैं, जिनको कि हथियार टेकने पड़े। तो एंजाइटी भी जो है कि ये भी हमें जो कि आत्महत्या की तरफ ले जाती है। खास तौर पे आप जैसे कि बात अभी मैंने की थी IIT स्टूडेंट की बात की थी, क्या वो स्टूडेंट क्या पहले से किसी रोग से ग्रसित है, लेकिन उनके मन में एक घबराहट आ गई कि हाँ मैं सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन का मेरा जो है कि नाता छूट गया, अब क्या। तो लेकिन यहाँ पे जो है कि एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी आ जाती कि कोविड में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा काम धंधा बंद हो गया है, क्या करूंगा, मेरा का कोई फायदा है, मेरा परिवार, मेरा काम परिवार की सेवा करना है, और मैं इस समय घर में बैठा हूँ, तो परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इससे पहले कि वो सोचे क्या मेरा कुछ फायदा है। इस तरह की भावनाएं जो है कि बहुत रहती। अगर परिवार में किसी को कोविड हुआ है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो है कि परिवार को चलाने की जिम्मेवारी है, तो वो ऐसे में सोच लेगा कि काश मेरे पति या मेरे पत्नी की जगह या मेरे बच्चे की जगह पे अगर मुझे कोविड हो जाता तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मैं इन लोगों के ऊपर बोझ तो ना बना रहता, ये लोग अपना कोई ना कोई तो रास्ता सोचते। तो इस तरह से कोविड ने हमारे मन में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा कर दिया है। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को ये कोविड हो रहा है या कोविड से ग्रसित हैं, ये उन लोगों में भी देखा गया है जिन लोगों को जो है कि कोविड से कुछ भी नहीं हुआ, कि जो लोग केवल घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत सेविंग है, वो सेविंग के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी जो कि बात आ रही है कि रोज वो व्हाट्सएप देखेंगे, रोज वो न्यूज देखेंगे कि हाँ कोविड हो रहा है, तो इसमें अब आगे कहीं हमें ना हो जाए। तो वो भी इस तरह से जो है कि बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है कि इस समय एक जो कि एक बहुत यूजफुल चीज है, उसका भी हमारे सामने एक बहुत
खराब रूप जो है कि सामने आया कि जो लोग ठीक थे भी एक तरह के इन्फोडेमिक, रोजाना ये देखते कि इतने लोग ग्रसित हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। अगर जो है कि हम सुनना नहीं, अखबार खोलते हैं तो सबसे ऊपर एक हेडलाइन जो है कि फ्रंट पेज पे यही होती है कि इतने लोग नए मिले, इतने पुराने हैं और लोग जो है कि अपना जीवन जो कि खो चुके हैं। यही चीज देखने में मिलती है जो कि एक व्यक्ति बहुत मुश्किल स्थिति में लेके जाती है। तो व्यक्ति ऐसे में भी सोचता है कि मेरे जीने का क्या फायदा है। और खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो कि ये कह लीजिए कि उनमें जो चीज देखी गई कि एक लोनलीनेस, और हमारे जो है कि समाज ने जो है कि बड़े बुजुर्गों का इस समय हुआ कि खास कि इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको नुकसान एक तरह से पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन वो देते थे उससे उनको किसी ना किसी तरह से नुकसान हुआ है। कि घरों में कोई बड़ा व्यक्ति है, वृद्ध है, तो अरे आप लोग किसी से मिलिए नहीं, आप अलग से बैठिए, पता है आपको अगर कोविड हो गया तो क्या होगा। तो इस तरह से करके उनमें एक उदासी, एक असहायपन की भावना वो उनमें जागृत कर दी गई और उनको एक अलग से कमरे में डाल दिया गया। पहले ही वो जो है कि अपने नजर की कमी के कारण, अपने सुनने की कमजोरी के कारण अलग थलग महसूस करते थे। अब तो जो है कि जहाँ पे जो है कि वाकई जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कि एक मिसनोमर था, हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए थी कोविड, हमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग ही चाहिए थी, लेकिन हमने इन लोगों को सोशली डिस्टेंट कर दिया और हमने इनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया। बस इतना ही नाता रखा कि किसी तरह से इनके कमरे के बाहर हम खाना रख दें, इनके कमरे के बाहर इनके जो है कि साफ कपड़े रख दें, जिस समय उठें ये जो है कि पहन लें, और इसके अलावा हमने कोई नाता नहीं रखा। तो इस तरह से लोनलीनेस भी जो है कि इसके चलते भी उदासी से ये लोग ग्रसित हुए हैं और बहुत बुरी तरह से इनके मन में भी आत्महत्याएं आई हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज रही है कि इस दौरान कि ये अपनी जो है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि इतने क्षमता नहीं होती है जिसकी वजह से कि इनके सुसाइड के जो बातें मन में आती हैं वो कामयाब हो पाए। तो लेकिन कुछ लोगों की ऐसी हुई भी है, ऐसी न्यूज़ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। तो डिप्रेशन जिन लोगों को हुआ है काम छूट जाने की वजह से या परिवार से छूट जाने की वजह से, उनका कोई प्रियजन जो है कि उनसे जो है कि हमेशा के लिए छूट गया है, उसकी वजह से अगर हुआ है तो उनमें भी इस तरह की जो है कि भावनाएं देखी गई है। LGBT लोग जो कि एक तरह से पहले ही जो है कि अलग थलग दुनिया उनको उन्होंने कर दिया, वो अलग थलग दुनिया में नहीं रहते हैं। हमारे समाज ने उनको अलग थलग दुनिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया हुआ है। और जो किसी तरह के जो कि कोविड मरीजों के जो ध्यान रख रहे हैं या जो स्टूडेंट जो कि ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन जो कि इस जो है कि समस्या से जूझ के बाहर आए हैं, सब में किसी न किसी तरह का एक डर बैठ किया हुआ है कोविड के चलते, जिसके चलते कि उनके मन में एक सुसाइड की भावनाएं जो है कि जागृत कोविड-19 के दौरान हुई है। तो और ये भी जो है कि पहले से जो कि पहले रहते उससे 4 गुना ज्यादा ही देखी गई है। और अगर इसमें देखिए लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये जो है कि करीब करीब नंबर 1 पे ही आती है। डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये एक वेस्टर्न डाटा है, डिस्क्रिमिनेशन पे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो शायद हमें ज्यादा मिलेगा कि लोगों को कोरोना वायरस का डर जो है कि इन दिनों में वो इतना नहीं सता रहा है जितना कि उनको ये देखिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या पहले किसी तरह का हादसा हुआ है या इन दिनों में उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों ने अलग थलग कर दिया है या उनको उन्होंने न्यूज सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके चलते लोगों को ज्यादा मुश्किलें हुई हैं बजाय कि कोरोना के चलते। तो हमें जान के ये बहुत सोचना पड़ेगा कि कोरोना के दौरान हमने कैसी न्यूज देनी है, हमने कैसी न्यूज नहीं देनी है, या अगर कोई खराब न्यूज जो कि हमें लगता है कि पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है तो उसको हमने किस भाषा में और किस तरह से देना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि लोग उससे कुछ ना कुछ लेसन सीखे। मीडिया का काम लेसन सिखाना है, मीडिया का काम लोगों को जो है कि पढ़ाना है, डराना नहीं है। लेकिन आजकल अगर आप किसी भी चैनल पे देखेंगे तो उनकी जो है ना कि ओपनिंग
सेंटेंस या ओपनिंग भाषा ही इस तरह से हुई कि बंदे के कान एकदम खड़े हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, और बजाय कि इससे वो कुछ सीख पाए वो डर ज्यादा जाता है और उसके बाद फिर कुछ सोच नहीं पाता है। तो हर जगह करीब करीब इसी तरह से ही देखा गया है कि जो है कि लोनलीनेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये लोग इसको जो कि लोगों को ज्यादा परेशानी हुई है कोविड-19 के दौरान बजाय कि कोविड-19। और ये सब हुआ क्यों है कि रिडक्शन इन वार टाइम को, तो कोई युद्ध तो नहीं चल रहा है इन दिनों, लेकिन वार टाइम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब एक कोविड-19 इन्फेक्शन होती है तो उसके बाद कब जिंदगी का दिया बुझ जाएगा इसका समय जो है कि कुछ निश्चित नहीं है, और आमतौर पे देखा गया है कि बहुत छोटा समय रहता है कि वो हमारा वार टाइम है, कि कोरोना से लड़ने का जो हमारे पास समय है वो अनिश्चित या बहुत कम है। तो जिसके चलते जो है कि लोगों में इस तरह के सुसाइड की अगर हो गया है तो इससे अच्छा यही है कि अब जीने की तो कोई आशा है नहीं, खुद ही मरने की कोशिश जो है कि वो क्यों ना कर लीजिए, ऐसा बंदा सोचने लगता है। नेशनल यूनिटी की सब लोग मर रहे हैं, अगर हम लोग मर गए तो उसमें क्या हुआ। बंदा अलग थलग महसूस करता है या उन लोगों के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो कोविड से मर चुके हैं कि हाँ मेरे माता पिता जो है कि मुझे छोड़ चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा जी के। तो इस तरह से भी जो कि जब हम उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी जो है कि हमें सुसाइड की तरफ प्रेरित। तो इकोनॉमिक रिसेशन जो है कि ये एक तरह का जो है कि पहले देखा गया था, ये एक बहुत ये इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन, ये करीब करीब 2005 या 6 में लिखी गई थी। मेरे पास ये किताब की हार्ड कॉपी है, मैंने उसमें से लिया है। तो उसमें लिखा गया कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो उसमें सुसाइड बढ़ता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल तो इकोनॉमिक रिसेशन क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात ही नहीं कर पाते हैं, जहां पे कि हमारा जीडीपी माइनस में जा रहा है। तो खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों के पास जो कि डेली वेज अर्नर्स होते हैं उनको तो मुश्किल हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी मुश्किल हुई है। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं कि उन्होंने अगर अपनी फैक्ट्री बंद की है तो फिर भी उसके बावजूद भी उनके ऊपर 25 लाख रुपया महीना का खर्चा है, कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उन्होंने उनको रहने की जगह देनी है, अगर वो घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो उनको भेजने का इंतजाम करना है, और ये भी कुछ श्योर करना है कि वो आगे जो है कि अपनी नौकरी यहीं पे करें। तो इस चीज की भी चिंता उनको सताती है कि आगे क्या होगा, अगर वो चले जाएंगे कहीं और नौकरी तो नहीं कर लेंगे। तो की चिंताएं भी उनकी, यानी कि जो एक बहुत संपन्न है और जो एक जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं बचा है, इस तरह की जो है कि आर्थिक जो है कि मंदी से जो है कि उसके मन में इस तरह की भावनाएं ना आने से। और जब इनइक्वालिटी खास तौर पे एक जो है कि लोअर तबके के जो हमारे एक समाज के जो है कि निम्न स्तर पे, आर्थिक निम्न स्तर पे रहते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई बड़े लोगों के पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो उनमें भी इस तरह से की भावनाएं आ जाती हैं। अगर कोई उनको मदद ठीक से नहीं मिल पा रही है, इनइक्वालिटी रहती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उनको भी इस तरह से जो है कि वैज्ञानिक जो कि सुसाइड की तरफ जो कि उनमें भावनाएं इस तरह से आ सकती हैं। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेशनल लेवल पे बात कर लीजिए या इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लीजिए, कि सब ने हाथ खड़े कर दिए हुए हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वही जो है कि इसमें सक्षम नहीं है कि कोविड पेशेंट से डील करें। तो कई होटल, कई धर्मशालाएं जो है कि उनको जो है कि कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। कई लोगों ने अपने जो है कि फैक्ट्रीज, शोरूम जो है कि अगर वहां पे काम नहीं हो रहा तो चलो वहां पे जो है कि कोविड हॉस्पिटल्स में जो है कि कन्वर्ट कर दिया जाए। ये हमारे लिए कोई छोटी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम जब हमारे पास मानसिक जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे भारत में पहले ही जो है कि बहुत कम है, कि अगर हम बात करें तो हमारे पास कुल मिला के करीब करीब 6000 जो है कि मनोरोग स्पेशलिस्ट होंगे। और हमारे पास अगर जो है कि ये डॉक्टर रजनी बहुत अच्छे से बता सकेंगे कि अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो तो शायद जो है कि 1-1.5 हज़ार या उससे भी कम मिलेंगी।
और अगर सोशल वर्कर्स की बात की जाए तो वो तो सैकड़ों में ही सिमट के रह जाएंगे। और और अगर हम जो है कि मेंटल हेल्थ नर्सिस की बात करें, चलो मैं उनकी बात नहीं करता क्योंकि उनको ढूंढना जो है कि वो जो है कि हम दिन में चिराग लेके भी उनको हम नहीं ढूंढ पाए किसी भी तरह से, तो वो तो है नहीं। हमारी सेवाएं बहुत कम है। तो कोविड ने हमें जो है कि एक सामान्य समस्या नहीं दी है कि ये एक अत्यंत विकराल समस्या दी है, बिल्कुल एक युद्ध की भांति की समस्या दी है कि जिस समय कि हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी हमें लोगों की जो है कि लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों के सामर्थ्य के लिए, उनके सहायता के लिए कि हमें सब कुछ करना है। हमें जो है कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए जो लोग भी हमें मिलते हैं हमें उनके लिए तैयार करना है। इसमें मेरे सामने इजराइल की एग्जांपल आती है। बहुत छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन अभी जब वहां पे जो है कि युद्ध की स्थिति हुई थी तो वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे जो भी उनके आम सिटीजन्स थे उन सबको जो है कि फौज में लिया गया, क्योंकि उनके साथ ये पहले ही एक करार कर लिया जाता था कि स्कूल के दौरान उनको जो है कि युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी और कभी भी जो है कि आपको जो कि युद्ध की स्थिति होती है तो आपको बुला लिया जाएगी। इसमें केवल जो है कि लड़कों की बात नहीं कर रहा, इसमें जो है कि आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो इजरायली लड़कियों और महिलाओं को जो है कि पीठ पे जो है कि बच्चे को बांधे हुए टैंक पे सवार होके लड़ते हुए आप अभी भी देख सकते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स सारी की सारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के हालात हमारे पास नहीं है कि हमें एक एक व्यक्ति को कोविड को एक समस्या ना मान के, बल्कि हमें कोविड से जूझने के लिए जो है कि आगे आना चाहिए और इस सुसाइड प्रिवेंशन के लिए भी हमें जो है कि उसमें योगदान करना चाहिए। हमारे पास वो समय गया कि हमारे पास एनजीओज नहीं होती थी। हमारा जो एक सरकारी सेक्टर है वो बहुत कम काम कर पा रहा है सुसाइड प्रिवेंशन में, लेकिन जो एक एनजीओ सेक्टर है, गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस चीज में जो है कि बहुत ही जबरदस्त काम किया है। और इसमें मैं एक समाज सेवी संस्था स्नेहा का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। और यहाँ तक कि हमारे जो है कि कोई भी जो है कि सरकारी संस्था से कोई व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन स्नेहा की जो फाउंडर थी डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी विजय कुमार, वो जो है कि इस समय जो है कि इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन एसोसिएशन की मुख्य सलाहकार हैं। और वो यहाँ पे इंडिया में नहीं रहती हैं, वो जिनेवा में ही उस संस्था में रहती है, लेकिन वहां से बैठ के वो संस्था का संचालन कर रही हैं। और इस तरह से हमारे पास और बहुत सारी संस्थाएं हैं कि अगर आप जिनको देखेंगे, मैंने कुछ संस्थाओं के नाम नोट किए हैं और कुछ के मैं नहीं कर पाया, तो हमें उन संस्थाओं से बहुत मदद मिली है। दूसरी चीज जो हमें मिली है इन दिनों में, आपने देखा होगा कि ये पिछले साल ही हुआ था, ये 25 मार्च के समय हुआ था कि टेली मेडिसिन की गाइडलाइंस इश्यू कर दी गई थी कि हम अस्पताल में मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मरीज जो हैं कि टेलीफोन के जरिए जो है कि हमसे पर्ची जो है कि दवाई लिखवा सकते हैं, हमसे वो जो है कि एक अगर उनको काउंसलिंग चाहिए तो वो काउंसलिंग ले सकते हैं। इस तरह के जो है कि हमारे लिए नियम जो है कि बना दिए गए। तो कोविड के दौरान अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। दूसरी चीज जो हमें उपलब्ध हुई है वो ये कि कहाँ सिक्किम, कहाँ रोहतक और कहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हम बैठ के इस तरह से बात करेंगे। वेबिनार्स, इस तरह का जो है कि हमारा जो शिक्षा का जो है कि एक्सचेंज, ये भी हमारे लिए उपलब्धि हुई। तो इसके द्वारा भी हम जो है कि किसी ना किसी तरह से जो है कि सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में जो है कि हम अपने ग्रुप बना सकते हैं। मैंने देखा है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे लोकल एरिया में है एक 3 जो है कि इस तरह से, एक विजन ह्यूमैनिटी है हमारे हरियाणा में, और एक जो है बी ह्यूमन, जिसमें कि BEE है, बी ह्यूमन की उन्होंने एक मक्खी की तरह काम करना है सुसाइड और कोविड से जूझने के लिए। तो इस तरह की कुछ संस्थाएं उभर के आगे आई हैं कोविड के दौरान, और पहले भी काफी थी जो कि काफी सराहनीय काम कर रही हैं। तो जो है कि ये कह रहे हैं कि जिन्होंने काम करना है उनको जो है कि कोविड या कुछ भी जो है कि रोक नहीं पाया है।
उन्होंने अपने कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लिए हैं और उन्होंने उसके ऊपर काम, एक बहुत सराहनीय काम जो है कि करके दिखाया। तो हम भी इस तरह से ही कर सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं आपस में, हमें समस्या का पता है, हम आपस में जो है कि इस समस्या का क्या विकराल रूप है, इस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आओ हम बैठ के ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ जो कि नए साधन ढूंढने पड़ेंगे, हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी कि हम कैसे मदद करें। हमें मदद की भी प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। कुछ लोग हमें मिलेंगे जो बहुत ज्यादा जो है कि रिस्क वाली सिचुएशन में है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड सिचुएशन में होंगे। हमें उन लोगों तक पहले राशन पानी पहुंचाना है, उन लोगों तक हमें जो है कि रहने सहने की व्यवस्था करनी है, उन लोगों को जो है कि हमें काउंसलिंग करनी है। तो वो हमें इस तरह से प्रायोरिटी हमें बनानी पड़ेगी, बजाय कि उन लोगों के लिए जो कि घर में जो है कि क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा कि ये काम केवल जो है कि डॉक्टर्स का, ये एनजीओ का नहीं है, ये काम मेरा भी है, मेरे बच्चों का भी है और पड़ोस में बैठे हुए लोगों का, उनका भी है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ है। सब लोगों ने मिलजुल के इस तरह का जो है काम कर, क्या समस्याएं आई और क्या उपलब्धियां रही, इस चीज के बारे में हमें बातचीत करने की जरूरत है। वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन दोज। और जब हम बातचीत करेंगे, हमें समस्याएं पता चलेंगी, तो हम और आगे के लिए तैयार हो सकते हैं कि इस समस्या से कैसे जूझना है। कहीं भी हमें समस्या का जो है कि हल मिला है, सफलता मिली है, तो वो बताएंगे, तो हमें जो है कि पता चलता है कि हाँ, इस तरह की कोशिश जो है कि हमारे लिए कामयाब हो सके। इस तरह से हमने सीखना है और सीखते हुए फिर से हमने दोबारा अपनी तैयारी करनी है। और जब तक कोविड है, जब तक समस्या है, ये सीखने का, तैयारी करने का, सहायता करने का, ये जो है कि साइकिल हमारा जो है कि चलता रहेगा। और तो इसी तरह से हम जो है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसमें आगे की स्लाइड्स को मैं बहुत ब्रीफ में लूंगा। ये स्नेहा फाउंडेशन की जो है कि जिसकी मैं बात कर रहा था, ये उसकी वेबसाइट है, तो इसको आप भी विजिट कीजिएगा जरूर, जो है कि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ये मैं कहूँगा कि बड़े दुख की बात है कि भारत में जितना भी जो है कि सुसाइड को लेके अनुसंधान हुआ है, उसमें से करीब करीब 90% जो अनुसंधान है उसके ऊपर जो है कि स्नेहा की मोहर लगी हुई है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक दुख की बात है। ये नहीं कि स्नेहा कर रही है, हमने स्नेहा से कुछ इतना सीखा नहीं है। और इसका जो भी अनुसंधान है कि वो इस चीज के ऊपर नहीं है कि किस तरह के लोग सुसाइड करते हैं। इनका अनुसंधान इन्हीं चीजों के ऊपर है कि वो उन्होंने बहुत पहले कर लिया था कि किस तरह के लोग सुसाइड कर सकते हैं। अब इनका अनुसंधान इस चीज के ऊपर चल रहा है कि कौन सी कोशिश कितनी कामयाब होती है, कि कहाँ पे जो है कि सुसाइड रेट कितना था और इस कोशिश के जरिए हमने उसको कितना कम कर लिया है। गेट कीपर्स का रोल, कि इन्होंने जो है कि गेट कीपर का कंसेप्ट इन्होंने भी दिया है और बाकी और संस्थाओं ने भी दिया है। खासतौर पे एक बनियन है संस्था, वो भी एक साउथ में ही है, और एक अभी मुझे याद आ जाएगी, गोवा में भी एक संस्था है जिसको कि एक बड़े रिसर्च करता जो है कि डॉक्टर विक्रम पटेल, जो कि जिनका के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्रेकफास्ट तो जो है कि वो भारत में आके करेंगे, लेकिन उनका जो है कि लंच डिनर जो है कि वो हार्वर्ड या जापान में कहीं पे होगा। तो उन्होंने भी जो है कि वहां पे अपने इस तरह से दूर रहते हुए भी उन्होंने जो है कि बहुत सराहनीय काम किया है कि साइकोथेरेपी में, सुसाइड प्रिवेंशन में और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में। और उन्होंने किसके साथ मदद ली है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट की मदद ली हो या किसी रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट की मदद ली हो। उन्होंने यही देखा कि हाँ भाई, स्कूल टीचर है, पंच सरपंच हैं, उनको थोड़ा बहुत बता दो कि हाँ भाई कि मुख्य लक्षण मनोरोग के क्या होते हैं और मुख्य लक्षण सुसाइड करने वाले व्यक्ति के क्या होते हैं। अगर वो पहचान लेते हैं तो ठीक है भाई, उनको ये नंबर दिया होगा और उस तक पहुंचा दें। तो इस तरह से करते हुए, और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी उनको सिखाए कि जब तक वो नहीं पहुंचा पाते हैं तब तक वो उनकी मदद करते रहे। बहुत सराहनीय काम किया है उन्होंने, और इससे संगत है उनकी जो कि एनजीओ का नाम डॉक्टर विक्रम पटेल की, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। तो वो भी एक एनजीओ है कि हमारे सरकारी तंत्र में इतना कुछ नहीं हो पाया। ये कई तरह से है कि हम किस तरह से, अगर हम जो कि बिल्कुल बचना चाहते हैं सुसाइड से, तो हमें जो है कि सुसाइड के जो मुख्य कारण हैं उनको पनपने ही ना दे,
हम क्यों लोगों को मजबूर करते हैं कि स्लम एरिया में रहें? हमारे घर के पास अगर कोई इमारत बनाने के लिए आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, झोंपड़े में रहो। अरे भाई, वो झोंपड़े में तो रहें, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी काम है, लेकिन उसको भी एक ऐसा जो है कि खराब शक्ल क्यों दे देते हैं? उसके अंदर भी हम एक टीवी, उसके अंदर भी एक जो एक सामान्य जो है कि वस्तुएं जिनको कि हमें जरूरत महसूस होती है, क्यों नहीं वो उनको पकड़ा देते हैं? क्यों नहीं उनके साथ हम एक स्कूल भी बना देते हैं कि जहाँ पे कि उनके बच्चे बजाय कि वो धूप में जो है कि घूमते रहें, वो जो है कि वहाँ पे कुछ पढ़ लिख लें। इस तरह के हम कुछ मोबाइल स्कूल ही क्यों नहीं बना लेते हैं? या वैसे बच्चों को हम जो लोकल स्कूल है वहाँ पे हम क्यों नहीं भेज देते हैं कि ये बच्चे जो है कि इतने तक पढ़े हुए हैं, लोकल स्कूल में गए, अपना उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो हाँ उस स्कूल क्लास में उनको बैठने की बिना फीस की इजाजत मिल गई। क्यों नहीं हम ऐसे कदम उठाते हैं? और अपनी हाइजीन, उसका ध्यान रखना तो हम सबका अपना एक कर्तव्य है। तो इस तरह से करते हुए हम सुसाइड न केवल जो है कि कोविड के दौरान बल्कि उसके पहले और उसके बाद भी जो है कि हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास जो चीज़ें हैं वो यही कि पहले हमारे पास ये एक प्रावधान होता था कि अगर कोई सुसाइड की कोशिश करता है तो वो एक अपराधी है और उसको जेल में डाला जाता था। लेकिन अब मैं इन स्लाइड्स के ऊपर ज़्यादा जो है कि जोर नहीं डालूंगा, कि मैं केवल जो है कि इसी चीज़ के ऊपर जोर डालूंगा कि हमारे पास अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया है 115 का, जो कि ये कहता है कि अगर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो वो अपराधी नहीं है, वो शायद एक मनोरोगी है, तो उसको जो है कि मनोरोग का जो है फायदा मिलना चाहिए। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खासतौर पर क्योंकि मैं सिक्किम के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और सिक्किम के लोगों ने कि वहाँ पे जो है कि आतंक के चलते जो है कि इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ जो है कि ऑब्जेक्शंस जताई हैं। उनका यही कहना है कि अगर जो कि हमारे पास यहाँ पे जो है कि माओवादी आ जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन के आ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं और अगर बच जाते हैं तो क्या आप उनको भी छोड़ देंगे? नहीं, हम उनको जो है कि हम इस चीज को आपके मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के इस सेक्शन को नहीं मान सकते। तो ऐसे कुछ अपवाद है जिसके पीछे की कारण कुछ अच्छे ही हैं कि हम हर किसी जो है कि सुसाइड करने वालों को वो को जो है कि एक तरह का मनोरोगी नहीं मान सकते हैं, बल्कि वो शायद एक समाज से विचलित हो गए हुए हैं। वो एक तरह से समाज से उनको एनोमिया हो गया, अगर खीम की बात करें तो वो एनोमिक हो गए हैं, वो अपने आप को समाज से अलग थलग समझते हैं, जिनके ऊपर की सेक्शन 115 सचमुच में नहीं लगना चाहिए। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा और जो है कि बाकी सारे का सारा हम डिस्कशन में ले लेना चाहते हैं। तो ये मेरे पास कुछ जो है कि संस्थाओं के नाम है, ये मेरे पास कुछ संस्थाओं के नाम है और ये वेबसाइट पे जो है कि हर स्टेट के जो है कि संस्थाओं के नाम अवेलेबल है जो कि सुसाइड के ऊपर जो है कि अच्छा काम कर रही हैं। और अगर किसी को नहीं पता चलता तो 104 नंबर जो है मोबाइल पे या जो कि इसके आगे उस जगह का एसटीडी कोड लगा के आप बात कर सकते हैं, तो वो आपको सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन पे ही लेके जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो एक अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सुसाइड चाहिए, इसको हमने ये माना है कि ये एक तरह का ये है कि एक समस्या का हल बताया गया है, लेकिन समस्या का हल ये नहीं है। किसी एक लेखक ने कहा, बहुत अच्छा लिखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। हम लोग उस देश से हैं जो एक जिंदगी के बाद भी जिंदगी में विश्वास रखते, और मैं जो है कि इसमें जो है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ही बात करूंगा कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद किन लोगों के साथ जो परिवार के सदस्य रह गए हुए हैं। मर के भी चैन ना आया, मर के परिवार के लोगों को कहाँ पे चैन आएगा। तो हमने मर के अपना तो हल कर लिया, लेकिन परिवार का अब क्या हो रहा है, क्या हमने इस चीज से सोचा? तो शायद आत्महत्या जो है कि किसी भी तरह का हल नहीं है। हमें जो है कि अपनी तरफ से आपस में लोगों के साथ मिलकर एक भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि हम इससे जो है कि इसको हम
दूर कर सकें। तो इसके साथ मैं अपना बात समाप्त करना चाहूँगा, और बहुत लंबी बात की है मैंने, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत हौसले के साथ सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और CRC सिक्किम के और मैडम आयरिश, मैडम रंजनी, मैडम सर हिमांशु दास, मैं सबका जो है कि अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ मैडम रजनी और उनके साथियों को। धन्यवाद। Thank you, Dr. Hitesh Kurana, sir, for your inputs on various issues, which actually covered very wonderful information on suicide prevention during pandemic, sir. And you have elicited more on 10 commonalities, elicited the cases which you have practically seen during your practice, and how to predict suicidal behavior. And you have also elicited about socio-demographic differentiations. Sir, thank you for giving such a wonderful lecture, sir. And I would like to add few more things, sir. And yes please, क्योंकि इसमें पूरा तो ये कभी ये बात पूरी कभी भी नहीं हो सकती है। Of family, social and individual perspectives. जो अभी हम सुसाइड जब भी कोई किसी का होता है, so हम लोग सोचते हैं कि that is what happened, उसने क्यों किया, कैसे किया, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एटॉप्सी। जो साइकोलॉजिकल एटॉप्सी होता है that is very much important कि कोई इंसान क्यों किया है, it is not something कोई रीजंस होगा कि जैसे उसने साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, उसका जो टर्मोइल था, इश्यूज था, उसका जो शायद वो बुलिंग था, वाज इट स्कूल बुलिंग और ऑफिस बुलिंग और वर्क प्लेस बुलिंग और साइबर बुलिंग। द रिलेशन बिटवीन बुलिंग एंड सुसाइड इज ऑल्सो नोटेड इन द R&D, सर। तो एंड मैं चाहती हूँ कि अपने जो ऑडियंस है उनको मैं थैंक यू बोलूंगी, अभी अब तक जुड़े हैं इसके लिए। और जो क्लासरूम बुलिंग है वो है 61% जो रिकॉर्डेड है इन द रिसर्च, एंड जो वर्क प्लेस है उसमें भी अराउंड 82% है। तो इसका मतलब है कि जो बुलिंग होता है स्कूल में और जो वर्क प्लेसेस में होता है, तो हर एक इंसान को, जैसे कि स्कूल में है टीचर्स है, कोलिग्स है, और ऑफिस में है और स्कूल टीचर्स है, और जहीं पे हो तो सबको एक इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन टीम होना चाहिए, उसमें एक्टिव लिसनिंग बाय एवरीवन इज नीडेड। तो ये सोशल स्टिग्मा हटाना चाहिए कि कोई को किसी को कुछ समस्या है, मानसिक समस्या है, उसको हम साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं साइक एक है जो न्यूरोलॉजिज्म कॉइन किया है, फादर ऑफ सुसाइडोलॉजी का, उनका नाम है एडविन स्निगमैन। तो उन्होंने ये बोला है कि साइक एक होता है, इसका मतलब है कि कोई मानसिक तनाव में है लेकिन वो अपने आप को महसूस करता है लेकिन किसी को बोल नहीं पाता है, नहीं बोलना चाहता है, अपने मन में ही रख लेता है। सो एक्टिव लिसनिंग बाय एवरीवन, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो या स्कूल में हो या कहीं भी हो, तो हमको ये महसूस करना चाहिए कि एक्टिव लिसनिंग, कोई भी अपना बाधा बोलता है या फिर कोई समस्या बोलता है, उसको कोई टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और चाहे कोई इंसान, अगर हमको लगता है कि हाँ कल तक तो अच्छा था, सडनली ऐसे क्यों किया, शायद वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसने वार्निंग साइंस दिया होगा जो हमने नेग्लेक्ट किया है। तो चाहे कहीं भी हो, हम किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भी मानसिक तनाव होगा शायद, तो फिर हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें या फिर कैसे हम उसको रेफर करें या फिर कैसे हम उनको डायरेक्ट करें कि उसको कोपिंग स्किल्स कैसे बढ़ेगा और वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा। और एक मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो रेशियो है फीमेल्स में होता है कि थ्रेटनिंग ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ही होती है, थ्रेटन करेंगे आइदर साइकोलॉजिकली, वो बोलेंगे कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूंगी ये सिचुएशन में, वो सिचुएशन में, बट द इंसिडेंस ऑफ कंप्लीटिंग द एक्ट इज मोस्टली इन मेल्स, जैसे कि सर ने अभी उनके लेक्चर में बोला था। और कंडीशनल थ्रेट होता है कि जो बच्चे और एडोलेसेंट्स बोलते हैं कि अगर मुझे ये नहीं दिया गया है, मुझे वो नहीं दिया गया है, तो फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा। ताकि हम बच्चों से और हर एक इंसान यही एक नोटिस करना है कि जब भी कोई बात करता है, कैसे बात करता है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, क्या उसमें जो बात करने में वो लाइंस जो है उसमें कहीं भी वो सुसाइड करने वाला कोई ही दे रहा है। ऐसे नहीं कि वो मेरा
फैमिली मेंबर नहीं है या फिर मेरा अपना नहीं है, ये हर एक इंसान का बाध्यता है कि उसको, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरी सिटीजन की हर एक इंडिविजुअल को लाइफ स्पैन अपने तरफ से कैसे उसको हेल्प करे ताकि वो लीड करे अपना लाइफ हेल्दी. और आई थैंक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो अब तक थे, एंड आई थैंक रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मैडम फॉर गिविंग अ वंडरफुल वेलकम नोट, एंड बिकॉज ऑफ हर वी कैन डू लॉट ऑफ वेबिनार्स. और मैं थैंक यू करूंगी मैडम से, और मैं अपना डायरेक्टर सर को, और मैं अभी मैं राकेश महापात्रा सर को वर्ड ऑफ थैंक्स करने के लिए बोलती हूँ. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Good afternoon, all of you. Myself, Rakesh Mahapatra, lecturer occupational therapy from CRC Sikkim. Here, we come to the end of today's webinar on topic suicidal prevention during pandemic. It gives me the immense pleasure to deliver the vote of thanks to all the dignitaries present over here. I would like to thank patron Dr. Himanshu Das sir, Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disability, that is NIEPVD, Dehradun, who always inspire us and guide us to conduct this type of webinar. Thank you, sir, for your unconditional support. I express my sincere gratitude to Professor Hitesh Khurana sir from Department of Psychiatry, Institute of Mental Health, Haryana, for enlightening us about this important topic. Sir, you describe about different suicidal behaviors, mental health issues in COVID-19 times and its prevention. It was really a very wonderful session and informative session. Once again, thank you, sir, in this COVID time, taking your time out and being here with us and guiding us about this important topic. Now, I would like to thank our resident coordinator, Ms. M. Irish Madam, for supporting and guiding to conduct this type of webinar. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank Dr. Tenali Rajan Bhushan ma'am, Assistant Professor, Clinical Psychology, and Vidyabhushan sir, Lecturer, Physiotherapy, for arranging this important webinar and coordinating in a smooth way. Also, I'd like to thank all the staffs of CRC Sikkim for their kind cooperation in making this webinar very much successful. Now, last, not the least, I'd like to thank all the participants of this webinar, which include students, professionals, parents, persons with disabilities, for attending this webinar and making it very much successful. I'm sure this topic will be very much helpful to all of you. Once again, thank you all of you. If you need any type of assistance in terms of rehabilitation, you all can contact our CRC Sikkim. And finally, I also like to say, if you feel any anxiety, stress, depression, suicidal thoughts, or any psychological issues, you all can contact Mental Health Rehabilitation Helpline number Kiran, which is launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. And it is always available 24/7. Its toll-free number is 1800-599-0019. Thank you, all of you. We, with the permission of Director Sir and with the permission of Resource Coordinator Ma'am and with the permission of Resource Person Sir, we can end the session meeting right now, sir. Any questions, you can put it in the chat box and we'll reply accordingly. Yes, कि हाँ, कि किसी के पास कोई भी प्रश्न हो वो पूछा जा सकता है, और बहुत वास्ट टॉपिक है. कुछ और ऐड करना चाहते हैं कमेंट में, वो भी ऐड किए जा सकते हैं. सर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर ऑडियंस में से, पार्टिसिपेंट्स से. Sir, we have got very good compliments about the webinar also, sir, and I would like to conclude this meeting, and any queries I will send you, and with their details also we can answer to them personally if they have any kind of queries, sir. जी हाँ, कि मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं या सारे के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके आप मेरे पास भेज सकते हैं. मैं उनका जो कि जवाब जरूर जल्दी से जल्दी. जी सर. जी सर. खुराना, मैं पूछ सकता हूँ क्या? नरेंद्र बोल रहा हूँ खुला से. जी सर, मेरे पास सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं जो सीपी चिल्ड्रंस होते हैं, और उनके पेरेंट्स बेचारे बड़े परेशान होते हैं, और वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट कराया जाए, कैसे अभी तक ठीक नहीं हो रहा बच्चा, इम्प्रूवमेंट, उसके लिए कुछ बताएंगे सर? कि हाँ, इन तरह के बच्चों के लिए जो है कि ये कहने की उम्मीद हो कि आशा की किरण एक जगाए रखना उनके लिए बहुत जरूरी रहेगा. कि उनको बात सबसे पहले आपको उनकी जो है कि व्यथा सुननी पड़ेगी, ताकि वो एक तरह से जो भी उनके मन में गुबार है उसका कम से कम एक इमोशनल वेंटिलेशन हो पाए. और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कि उनको ये लग रहा है कि उनका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा.
तो बच्चा उनके लिए एक जो है ना कि बहुत जो है कि ये कह लीजिए कि अहम चीज हो जाती है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पे ये होगा कि बच्चे की कुछ समस्याएं हैं जो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं या उनका कुछ हो पाए। तो आप उनसे वो जो है ना कि ठीक नहीं हो पा रहा को आप दूसरे ढंग से जो है कि अनुवाद बताइए कि बच्चे की क्या क्या समस्याएं हैं। उनको आप ये नहीं बताइए, कहिए कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज कहना जो है कि काफी गलत होगा। तो उनको आप यही बताइए कि इस तकलीफ के लिए हल हमारे पास इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। तो अगर हो सके आपसे बेशक किसी तरह के वीडियो से या जो है कि ऐसे में आप कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं जो बच्चे ठीक हो गए, तो दूर से आप उनको ये दिखाइए, देखिए कि उन बच्चों में भी इस तरह की दिक्कत देखी गई थी और अब वो ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह से मेरा इशू ये था कि पेरेंट्स ऑलमोस्ट ठीक होने के कगार पे आते हैं, लेकिन वो क्या होता है इन बिटवीन वो बाकी हुई बातों में आ जाते हैं और किसी झाड़ने फूकने के पास चले जाते हैं। अब उसमें उनका जो दोबारा से प्रॉब्लम वही रिकर हो जाती है, मतलब कंट्रोल होने के बजाय से दोबारा उसी पे पहुंच जाते हैं। कि हाँ कि हम जबकि भारतीय सभ्यता के बीच में बैठे हुए हैं तो ये उनका हक बन जाता है कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो जाएं, चाहे वो झाड़ फूंक वाले के पास जाना चाहते हैं तो बेशक वहां पे जाएं, लेकिन हमें अपना जो है कि फर्ज वो नहीं भूलना है कि हमें उनको ये बताना है कि सही इलाज क्या है। कि आपने झाड़ फूंक वाले के पास जाना है, बेशक जाइए, शौक से जाइए, लेकिन हमें नहीं छोड़िए। जो हम इलाज कर रहे हैं उसको आप नहीं छोड़िए। झाड़ फूंक वाला अपना अलग काम करेगा, हम अपना जो है कि अलग काम करेंगे। लेकिन जब हम कभी उनको जो है कि कंट्राडिक्ट करेंगे, जब हम उनको कभी अपोज करेंगे कि नहीं वहां पे इलाज नहीं होगा, तो कई बार मैंने देखा है कि इस तरह से जो है कि हमारी एक जो उनके साथ एक संपर्क बना होता है, जो हमारा एक उनका एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बना होता है, वो टूटने लगता है। उनको लगता है कि ये तो शायद हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये तो बस अपनी भाषा ही बोलना चाहते हैं और अपना जो करते हैं उसी के बारे में बोलना चाहते हैं। तो उनको कंट्राडिक्ट नहीं कीजिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना रास्ता निकाल लीजिए। ये आप कर सकते हैं। हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे मरीज आते हैं कि यहाँ तक कि आपको मैं ये बताऊंगा कि इंडोर में से हमारे पास मरीज छुट्टी लेना चाहते हैं, कुछ छुट्टी लेना चाहते हैं एक दिन की। कि कहाँ पे जाना है कि हमें जी बालाजी जाना है। अच्छा, हम उनसे दूसरी चीज नहीं पूछते हैं कि बालाजी वो क्यों जा रहे हैं। हम उनको बस ठीक कहते हैं ठीक है कि बालाजी जाना है तो उन दौरान में ये दवाई है और ये दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बालाजी में जाके आप जो मर्जी कीजिए, जो मर्जी पाठ पूजा कीजिए, आपको उसकी इजाजत है, लेकिन दवाई छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। What are the government schemes for disabled persons? हम गवर्नमेंट डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो है कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हमारे पास। कि अब ये हो गया कि पहले जो है कि इनके लिए जो है कि जॉब में रिजर्वेशन कम होती थी, अब शायद जॉब में रिजर्वेशन जो है कि 1% से बढ़ा के 4% तक इसको कर दिया गया है। एक तो ये स्कीम है और दूसरी स्कीम जो है कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट की भी स्कीम है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कि अगर किसी व्यक्ति की बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलती है यानी कि 40% या उससे ज्यादा, तो सरकार उसको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देती है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी कम नहीं है। और तीसरा जो है कि आप देखेंगे कि हर जगह पे किसी भी ऑफिस में जाते हैं वसंत जी, और जो है कि आप किसी जो है कि जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि आपको इंतजार करनी पड़ती है, तो वहां पे भी ऐसे लोगों के लिए कि जिनमें कि किसी न किसी तरह की जो है कि चलने फिरने की समस्या है, इनके लिए अलग से जो है कि प्रावधान होते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इनके लिए आपको रैंप भी मिल जाएगी, व्हील चेयर भी मिल जाएगी, आपको इनके लिए एस्कॉर्ट भी मिल जाएगा। और इसी तरह से आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है कि दिव्यांग सुलभ जो है कि व्यक्तिगत सहूलतें वो भी मिल जाएंगी। और इनके जो कि इंतजार करने के लिए लाइन वो भी अलग होगी, रैंप मिल जाएगी। तो इस तरह की चीजें मिल जाएंगी।
यहाँ तक कि रेलवे में जाएंगे कि अगर वहाँ पे आप जो है कि अपनी डिसेबिलिटी शो करते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट केवल जो भी टीटी देखेंगे। आप दिव्यांगता शो करते हैं तो आपको पहले ही जो है कि लोअर बर्थ मिल जाएगा, आपको अपर बर्थ की उसमें जो है कि प्रावधान कोई रहेगा ही नहीं, कि जो लोअर बर्थ होगा उसी पे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से जो है कि राज्य और जो कि केंद्रीय सरकार के जो है कि डायरेक्टिव्स हैं सभी ऑफिसेज में कि अपने हर सुविधा को वो दिव्यांग और वृद्ध कुशल उसको बनाएं, ताकि किसी को भी जो है कि कुछ जो है कि मुश्किल का सामना नहीं करना। तो ये कुछ तो मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये बाकी आप में से भी काफी कुछ इसमें जोड़ सकेंगे वसंत जी के प्रश्न के। Sir, if there are any questions, you can kindly put up in the chat box, and I request all the participants to kindly fill up the feedback form. And any kind of suggestions, we are welcoming. Kindly give any kind of suggestions. And I thank each and CRC Sikkim team for giving this wonderful opportunity once again. Thank you, sir. यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं CRC सिक्किम और सभी श्रोतागण, मैडम आयरिश, हिमांशु दास, मैडम रजनी, सबका अत्यंत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखने का मौका दिया। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलत कुछ कह दिया हो, किसी को कुछ गलत लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी कमी मुझे बताई जाए ताकि वो दोबारा नहीं हो, किसी और को उस समस्या का सामना ना करे। पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हु आर ऑन व्हील चेयर फॉर द होल लाइफ बिकॉज नॉट मच इम्प्रूवमेंट कैन बी डन, हाउ कैन वी एड्रेस देम एज फिजियोथेरेपिस्ट? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप उनको जो है कि एक तो जो कि उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह जो उन्होंने करनी है कि और जो उनकी डिसेबिलिटी है उसके बारे में मैं कहूँगा कि आप झूठ उनसे बिल्कुल भी नहीं कहिए, लेकिन जो चीज़ भी आपने उनको बतानी हो वो इस ढंग से बताइए कि वो उस चीज़ को जो कि समझ पाएं और उससे विचलित नहीं हो पाए। कि जैसे कि अगर हम उनको ये कहते हैं कि हाँ भाई आपकी जो इंजरी है अब इसके लिए तो ये है कि आपको जिंदगी भर जो है कि व्हील चेयर पे ही बैठना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, यही करना है। अगर हमें उनकी मानसिक स्थिति का नहीं पता है तो शायद ये बात किसी को जो है कि बहुत चुभ सकती है और वो किसी भी तरह के जो है कि कदम उठा सकता है। तो सबसे पहले हमें मानसिक जो है कि समस्या और उनकी मानसिक स्थिति का समझना जरूरी है, और उसके बाद हम उनको ये चीज़ भी बताएं, जब वो इस चीज़ को समझ जाएं कि हम व्हील चेयर पे बैठ के वो क्या क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जब आपने ख़ास तौर पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और व्हील चेयर पे बैठने ही की बात की है तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप फिर स्टीफन हॉकिंस की एग्जाम्पल जो है कि वो ज़रूर लीजिए कि कैसे उस बंदे ने जो है कि अपने व्हील चेयर और अपने जो है कि मैकेनाइज्ड चेयर के ऊपर ही बैठ के पूरी दुनिया को जो है कि ज्ञान दिया और पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से हिला दिया। इस तरह की काबिलियत है तो उनको आप बता सकते हैं कि व्हील चेयर पे ही बैठे आप अपना कुछ ना कुछ म्यूजिक बजा सकते हैं, व्हील चेयर पे बैठे बैठे आप गाना भी गा सकते हैं, व्हील चेयर पे बैठे वो एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, व्हील चेयर पे बैठे वो व्याख्यान भी कर सकते हैं और व्हील चेयर पे बैठे वो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं। तो यानी कि एक डिसेबल्ड पर्सन को वहां पे हम डिसेबल्ड ना बता के हम उनको इस तरह से बताने की कोशिश करें कि दे आर डिफरेंटली एबल, कि काफी सारी एबिलिटीज हैं जिनकी तरफ उनकी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा, कि हम उनको बार बार व्हील चेयर की तरफ आकर्षित नहीं करें, मुझे बार बार ना कहें। उनको जब एक तरह के डीफोकसिंग टेक्निक जो है कि उनके साथ हम फोकस करके जो बाकी उनकी काबिलियत है उनको हम सामने लाने की कोशिश करें। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं कहूँगा कि आप बाकी लोगों के साथ, बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं कि उनको जो है कि व्हील चेयर पे जो है कि रिहेबिलिटेट करने के अलावा और किस तरह से आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं कि वो अपने की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी
और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कि वो महसूस कर सकें, उनको पता ही ना चले कि वो व्हील चेयर पे बैठे हैं। एक इसी तरह का उदाहरण मेरे सामने कुछ दिन पहले आया था कि एक जो है कि एक लेडी ही मेरे पास आई, तो उसमें बात कर रहा था, तो उसने एक हियरिंग एड लगाई हुई थी, तो मैंने गलती से उनको जो है कि मेरे मन में अभी भी माफ़ी की भावना है उनमें, मैंने गलती से उनको ये कह दिया कि अच्छा थोड़ा सा मैं आपके साथ ऊंचा बोलूँगा ताकि आप आसानी से सुन लें। तो उसने मुझे यही बताया कि सर आई एम डबली एबल टू हियर। Doubly able, I think I have hearing aid also, and I have intracochlear implant also, and I think I can hear better than what you can hear. तो मुझे ये उनका जो एक स्टेटमेंट थी, जो इनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, वो बहुत अच्छी लगी। और फिर उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि हाँ भाई आप काम क्या करते हैं, तो कहते कि those children who can't hear I train them। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो इसी तरह से उनकी जो एक इनकैपेबिलिटी है उन्होंने वो तो कहीं पे सामने आने ही नहीं दी। तो इसी तरह से जो एक व्हील चेयर पे बैठा इंसान है, वो भी अगर किसी को और कोई ऐसी दिक्कत है तो वो उनको भी एजुकेट कर सकता है, उनकी जिंदगी के लिए भी वो एक रोशनी बन सकता है, और एक उदाहरण के तौर पे कि हाँ देखो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। Thank you, sir, for answering the query of a participant. And thank once again to each and everybody. And the meeting is going to end now. With the personal permission of resource person. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this informative session. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।